Hello friends, today we are covering the topics of Python function. Which topics we are covering in the functions? So first topic is creating functions. I will explain calling a functions, arguments, arbitrary arguments and keyword arguments, passing a list as an argument, default parameter value, returns value and the pass statement. So our first topic is creating a functions. But before that, what is a function? What is a Python functions? यहाँ पर functions की बात हो रही है. Not a marriage functions, not annual functions like a Python functions. So first of all, what is a functions? So functions is a block of code which only runs when it is called. You can pass data known as parameters into a function. डेटा जो आप functions के अंदर यहाँ पर पास करोगे that is called a parameters. A functions can return data as a result. So how to creating a first of all functions? Whenever you want to create a functions in the Python, at that time you have to use the def keyword, def keyword in the Python. Okay, here you can see in the examples def my functions. यहाँ पर functions का आपको नाम देना है और यहाँ पर मैंने functions के अंदर प्रिंट करवाया है print hello from a functions. Now how to calling a functions? To call a function, use the function's name followed by parenthesis. यहाँ पर आपको कैसे functions को call करवाना using a bracket, using a parenthesis. जो functions का नाम यहाँ पर आपने दिया है सेम टू सेम functions का नाम देके आपको उसको यहाँ पर कॉल करवाना है. नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट्स. आर्ग्यूमेंट्स क्या है? Informations can be passed into functions as a arguments. यहाँ पर जो आप informations दे रहे हो ब्रैकेट के अंदर that is called a argument. Arguments are specified after the function name inside the parenthesis. Parenthesis के अंदर दिया जाता है. You can add as many arguments as you want. Just separate them with a comma. यहाँ आप more than one argument है वो दे सकते हो. You have to use just here comma. The following example has a functions with one argument. यहाँ पर मैंने एक ही argument use किए. If you want to give a second argument, then at that time you have to give a comma and after that you can write a second argument. मैंने यहाँ पर एक ही argument use किए और उसको यहाँ पर call करवाया है. Functions दिया है my functions ने, उसके अंदर if name मैंने argument दी है, प्रिंट करवाया है एफ नेम और जब कॉल किया है माय फंक्शंस तब मैंने नाम पास किया अंदर जैक एंड टॉमी. सो लेट्स सी विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल. Okay, so first of all we are creating the functions using keyword def and give the functions name here. मैंने यहाँ पर शॉर्ट नेम दिया है my flnc functions and bracket. Hello, I am from functions. ये जो portions हुआ that is called creating a functions. Now we are calling the functions. Okay, यहाँ पर मैंने कोई अभी argument pass नहीं की है. After that I will explain how to pass the argument. First of all we will check the output. Okay, our functions is ready. Here you can see I have typed in the functions like hello I am from functions. Here you can see the output. Okay, now we are passing the argument. Okay, first of all we are passing the only single argument. मैं आपको फर्स्ट सिंगल आर्ग्यूमेंट देके सिखा रही हूँ. तो फर्स्ट में दे रही हूँ एफ नेम. मैंने यहाँ पर सिंपल एक सिंगल आर्ग्यूमेंट है वो पास किया है और अब हम प्रिंट के अंदर क्या करेंगे, एफ नेम को प्रिंट करवाएंगे. जो मैं कॉलिंग के टाइम है जो नाम दे रही हूँ वो मैं क्या करवाऊंगी, प्रिंट करवाऊंगी एफ नेम. और अब मैं माय फंक्शंस के अंदर नेम दे रही हूँ जैक. आप यहाँ पर दूसरी बार भी फंक्शन से वो कॉल कर सकते हो लाइक दिस.
यहाँ पर मैंने दिया है नाम टॉम. ओके, so let's check the output. See here, see here, you can see the Jack and Tom. Okay, यहाँ पर मैंने क्या किया, फंक्शंस में नाम पास करवाया, सिंगल आर्ग्यूमेंट दी है. नाउ वी आर गिविंग द मोर देन वन आर्ग्यूमेंट, like just like this. Just give the comma and give the second argument name. मैंने दिया फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. ओके, अब प्रिंट में मैंने फर्स्ट नेम ऑलरेडी करवा के रखा था. अब हम क्या करेंगे, प्लस करके बीच में स्पेस देंगे थोड़ा, और फिर मैं ज्वाइन कर रही हूँ लास्ट नेम. ओके, अब यहाँ पर अब जब हम यहाँ पर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 2 कर रहे हैं, then we have to also pass the two value here. ऐसा नहीं कर सकते हो आप कि मैंने यहाँ पर एक ही आर्ग्यूमेंट पास की हो और फिर यहाँ से मैं वैल्यू भी दो पास करूँ, या फिर दो आर्ग्यूमेंट पास किए और यहाँ से वैल्यू में एक पास करूँ. ऐसा नहीं हो सकता है. आप सिंगल आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, then you have to give a single value here. आप यहाँ पर डबल आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, देन यू हैव टू गिव अ टू वैल्यूज हियर. अब जितनी आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर दे रहे हो उतनी ही वैल्यू यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग के टाइम देना है. अब मैं जैक के साथ उसका लास्ट नेम है वो प्रिंट करवा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर कर दिया जैक डोर्से, और टॉम के साथ कर दिया हॉपर, टॉम हॉपर. ओके, लेट्स चेक द आउटपुट. Okay, see here. Here you can see Jack Dorsey and Tom Hopper. Here we are passing the two arguments and passing also two values here. Now, next we are learning arbitrary arguments. What is an arbitrary argument? First of all, if you do not know how many arguments that will be passed into your functions, add a asterisk sign. The star have that is called asterisk signs before the parameter name in the functions definitions. अगर आपको ये नहीं पता है कि मुझे कितनी आर्ग्यूमेंट है वो पास करनी है, वैल्यू पैरामीटर से पास करना है, then at that time what you are doing, you have to use just this asterisk signs before the argument. This way functions will receive a tuple of argument and can access the item accordingly. देखो यहाँ पर मैंने फंक्शंस को क्रिएट किया है, माय फंक्शंस, एंड मेरी आर्ग्यूमेंट है नेम, बट उसके पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर एस्टेरिक साइंस यूज कर दी है. अब उसके अंदर मैंने प्रिंट करवाया है कि द यंगेस्ट चाइल्ड नेम इज नेम 1. यहाँ पर मैंने इंडेक्स पास करवाया है. ओके, और पैरामीटर्स यहाँ पर मैंने दो पास करवाया है, चेक एंड टॉम. लेट्स सी विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल. Okay, here I am again creating the functions here. Print the name of persons is, और यहाँ पर क्या देना है, पैरामीटर नेम देना है जो यहाँ हम आर्ग्यूमेंट्स में पास करने वाले हैं. तो मैं आर्ग्यूमेंट में पास कर रही हूँ एस्ट्रिक साइन के साथ, एस्ट्रिक साइंस, एंड मैंने दिया है यहाँ पर नेम. ओके, सो जो आर्ग्यूमेंट पास की है उसको ही हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं, प्लस नेम विथ इंडेक्स नंबर. आपको कौन सा पास करवाना है वो इंडेक्स नंबर दे दो आप यहाँ पर. अब यहाँ पर फंक्शंस मैंने कॉल करवाया है. एट दैट टाइम आई हैव गिव थ्री वैल्यू हियर, जैक, टॉमी एंड जेरी, राइट. एंड इन दिस फंक्शंस आई हैव पासिंग द इंडेक्स वैल्यू 1. तो कौन सी वैल्यू पास होनी चाहिए यहाँ पर, 0 एंड 1, यानी टॉमी पास होना चाहिए. ओके, आर्ग्यूमेंट्स के अंदर. Okay, see here you can see the name of persons is Tommy. हमारी फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, टोमी. 0 से इंडेक्स से वो स्टार्ट होती है. Now our next topic is keyword as an argument. Now what is keyword as an argument? यहाँ पर आपको वो कीवर्ड नहीं देना है जो इंटीजर है, जो फ्लोट है, डेटा टाइप है, लाइक दिस. तो वो आपको यहाँ पर नहीं देना है. तो आप कीवर्ड एज आर्ग्यूमेंट है क्या, देन फिर यू कैन ऑल्सो सेंड आर्ग्यूमेंट्स विद द की इक्वल टू वैल्यू. आपको की देना है और उसके सामने वैल्यू देना है. ओके, सिंटेक्स उसकी क्या बनेगी, लाइक दिस, की इज इक्वल्स टू वैल्यू.
This way, the order of the argument does not matter. Okay, see here. Here I have created my functions name1, name2 and name3. Here I have print the youngest child is name2. अब मैंने की यहाँ पर क्या दे दी है name2. ओके, अब कॉल करवाया है जब फंक्शंस को my functions, तब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्या किया है। यहाँ पर name1 इज इक्वल टू जैक, name2 इज इक्वल टू टॉमी एंड name3 इज इक्वल टू जेरी। ओके, अब जो की यहाँ पर मैंने दी है name2 वो पास होना चाहिए। लेट्स सी विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल। Here I am creating the functions, my function, and in between I am giving here three key value, three arguments. Here I am creating the functions, my functions, and in between I am giving here three arguments like this: students1, students2, students1, comma, students2, comma, students3. प्रिंट स्टूडेंट्स टू नेम इज स्टूडेंट्स टू। यहाँ पर मैंने की दे दी है स्टूडेंट्स टू। ओके, अब हम फंक्शंस को कॉल करवा रहे हैं। सी हियर, हियर आई हैव कॉलिंग द फंक्शंस माय फंक्शंस। स्टूडेंट्स वन इज माय की इज इक्वल टू वैल्यू, तो वैल्यू क्या है जैक। स्टूडेंट्स टू इज इट्स अ की and value is a Tommy. Students 3 is a key and Jerry is a value. And here I have passed the key students 2. So क्या print होना चाहिए Tommy. So let's check the output. Students 2 name is Tommy. See here you can see the output. Students 2 name is Tommy. Okay, next we are see another topic is arbitrary keyword argument. अब यह arbitrary keyword argument है क्या actually? Then if you do not know how many keywords argument that will be passed into your functions, at that time add two asterisk signs. कितनी लगानी है asterisk signs आपको? Two asterisk signs before the parameter name in the functions definition. यहाँ पर before the parameter name आप यहाँ पर first of all क्या करोगे, दो asterisk sign से वो पास करोगे। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फंक्शन क्रिएट किया है और उसके अंदर मैंने नेम है उसका लास्ट नेम की नेम है की वैल्यू है वो प्रिंट करवाया है। ओके, और कॉलिंग के टाइम मैंने की दी है एफ नेम और वैल्यू है टॉमी। अनदर की नेम है लास्ट नेम एंड वैल्यू है हिल फिगर्स। ओके, लेट्स सी विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल। Here I have created the functions def my functions, or here I have give double asterisk signs here, and my arguments, my parameter name is name. Okay, here I have print his name is, and here you can see the name is a argument. Name is a argument. Okay, and in between this bracket I have passed f name. Okay, f name is my key. F name is my key. Okay, I am giving here at the calling time my functions f f name is my key and equal to my key value is Tommy. Okay, here I have calling the functions my functions and my key is f name, a value is Tommy and l name is a key and here figure is a value. और here you can see I have passed a key argument name. Name है वो key argument है और in between this bracket I have passed this key f name. तो f name के अंदर क्या है Tommy, तो वो पास होनी चाहिए वैल्यू। लेट्स चेक द आउटपुट। ओके, here you can see his name is Tommy. तो जो ये की यहाँ पर हमने दी है कीवर्ड्स के अंदर आर्ग्यूमेंट्स के अंदर वो क्या हुआ पास हुआ यहाँ से। ओके, our next topic is default parameter value. What is a default parameter value? If we call the functions without an argument,
इट यूजेस द डिफॉल्ट वैल्यू। आप यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं पास करोगे तो जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर दी है आपके आर्ग्यूमेंट के अंदर जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो पास कर देगा। Suppose see here I have created the functions. My functions country is equals to Norway. Okay, and in between these functions I have print I am from plus country. मैंने यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट है वो पास करवा दी है। Now at that the calling time I have passed the value Sweden. मैंने यहाँ से कौन सी वैल्यू पास की है? स्वीडन। अब जब मैं वैल्यू पास करवा रही हूँ तो यहाँ पर क्या पास होना चाहिए? स्वीडन पास होना चाहिए। ओके, बट सपोज मैं यहाँ से वैल्यू पास नहीं करवा रही हूँ, राइट, लाइक दिस, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ से कौन सा पैरामीटर पास होना चाहिए? नॉर्वे। ओके, लेट्स चेक द आउटपुट। ओके, सी हियर आई एम फ्रॉम स्वीडन। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारी कौन सी पास मैंने की थी? स्वीडन। बट सेकेंड टाइम कॉलिंग करते हुए मैंने यहाँ पर कोई भी आर्ग्यूमेंट है वो पास की नहीं है, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वो थी मेरी नॉर्वे, तो उसने नॉर्वे है वो पास कर दी, डिफॉल्ट पैरामीटर है वो ले लिया। तो आउटपुट में क्या हमें मिला? आई एम फ्रॉम नॉर्वे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पासिंग अ लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। क्या करना है हमें? एज ए लिस्ट क्रिएट करना है और उसको हमें आर्ग्यूमेंट में पास करना है। See here I have create functions, my functions, or in between I have give argument my functions and food. Okay, अब उसके अंदर मैंने for loop का यूज किया है। for loop x in food, then क्या प्रिंट होना चाहिए? x की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। ओके, अब एक अनदर वेरिएबल क्रिएट किया है मैंने फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर मैंने एप्पल, बनाना एंड चेरी है लिस्ट की वैल्यू है वो दे दी है, राइट। और आफ्टर दैट आई हैव कॉल्ड द फंक्शंस, माय फंक्शंस, एंड इन बिटवीन आई हैव पास दिस वैल्यू फ्रूट्स। अब फ्रूट्स से वो पास होके वो कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर माय फंक्शंस के अंदर, फूड के अंदर। ये जो पैरामीटर आर्गुमेंट नेम है क्या है? वो है फूड है। ओके, अब यहाँ से वो लूप में क्या होगा? इनिशियलाइज होगा एंड प्रिंट करेगा। ओके, लेट्स चेक द आउटपुट। ओके, here you can see our list is printed एप्पल, बनाना एंड चेरी। ओके, यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो, जो मैंने लिस्ट दिया है सेम टू सेम लिस्ट है वो पास हो गया है यहाँ पर। Now our next topic is return values. First of all, what is return values? To let a function return a value, use the return statement. Whenever you want to use a return values, at that time you have to use a return keyword here. अब तक हमने क्या किया था? Just we have created the functions and we are passing the arguments here like this, and we are passing the value, key and value or value. Okay. Now here we are returning the value. How we are returning the value? See here I have created functions, my functions, and in between I am giving here argument x. Right? Now inside the functions I have written the value return 10 into x. 10 into x मैंने मल्टीप्लीकेशन करवाया है, जो x के अंदर पास होगा उसके साथ वो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। Okay, and here I have called the functions in print my functions and 3, right? तो क्या होना चाहिए? 3 into 10. So यहाँ पर हम देख सकते हैं आउटपुट। Now let's check the output. Here you can see 30 is our output. Okay, so this is the return value. Now last but not the least, this is the pass statement. What is pass statement? फंक्शंस डेफिनेशंस कैन नॉट बी एम्प्टी। आप फंक्शंस डेफिनेशंस को कभी एम्प्टी नहीं रख सकते हो। बट इफ यू फॉर सम रीजंस हैव अ फंक्शंस डेफिनेशंस विथ नो कंटेंट, पुट इन द पास स्टेटमेंट टू अवॉइड गेटिंग एन एरर। एरर को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पास स्टेटमेंट को पास करना पड़ेगा। ओके, कैसे करोगे? सपोज यहाँ पर मैंने वैल्यू फंक्शंस के अंदर पास की है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फंक्शंस को कॉल किया है, अंदर फंक्शंस के अंदर वैल्यू भी पास की है। बट आप ये नहीं करवाना चाहते हो तो आप विदाउट पासिंग वैल्यू या फिर कॉलिंग फंक्शंस आप ऐसे ही फंक्शंस को नहीं रख सकते हो। यू आर गेटिंग एन एरर।
आपको क्या करना है, एट द टाइम यू हैव टू यूज द पास कीवर्ड। अब यहाँ पर क्या होगा, यू कैन नॉट गेटिंग एन एरर, एरर नहीं मिलेगा, आउटपुट भी नहीं मिलेगा आपको, बट आपको एरर भी नहीं मिलेगा। लेट्स चेक द आउटपुट। Here you cannot getting an error. So this all about the Python functions. I hope so this video is helpful for you. Please like कीजिए, share कीजिए and subscribe कीजिए. Thank you. Bye bye.